हाँ जी, पढ़िएगा। Detailed explanation of Atmakarka and other Karakas in Vedic astrology. In Vedic astrology, Karakas, significators, are planets that represent specific aspect or relationships in a person's life. The concept of Atmakaraka, soul significator, and other Karakas provide deep insights into an individual's life, purpose, and relationships. Below is a simplified yet comprehensive explanation. Atmakaraka, soul significator. The Atmakarka is the planet that has traversed the highest degree in any sign among the seven planets: Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn. In some schools, Rahu, North Node, is also included, making it eight planets. Formation of Atmakarka. Check the degree of each planet in natal chart. The planet with the highest degree becomes the Atmakarka. For Rahu, subtract its longitude from 30 degrees because Rahu moves in reverse. Importance of Atmakarka. Atmakarka is like the king in the chart. Other planets act as its ministers. It reflects the soul's desire and life lessons. If Atmakarka is favorable, it amplifies the positive effect of other Karkas. If unfavorable, it can diminish its positive effects. देखिए, अ, हम लोग फॉलो करते हैं ये संजय रथ जी को, ठीक है। तो ऐसे अ, 7 कारक होते हैं, 7 कारक होते हैं। जो संजय रथ जी हैं, ठीक है, वो 8 कारक बताते हैं, ठीक है। राहु को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, कि राहु भी एक होता है, ठीक है। केतु को कोई भी कारक नहीं मानते हैं, ठीक है। राहु को भी बहुत लोग कारक नहीं मानते हैं, लेकिन हम फॉलो करते हैं संजय रथ जी को, ठीक है। और वो बोलते हैं कि 8 कारक होता है, ठीक है। हाँ। और आई थिंक ये जगन्नाथ पुरी के हैं, ठीक है। हाँ, जगन्नाथपुरी अ, के हैं संजय रथ जी, ठीक है। उनके पापा भी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है। हाँ, हाँ। अच्छे ब्राह्मण लोग हैं और खुल के अपनी बात शेयर करते हैं, ठीक है, संजय रथ। तो हम लोग 8 कारक को ही पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़िए। Example, if Jupiter is at 28 degrees in a particular sign and no other planet has higher degree, then Jupiter becomes Atmakarka. If Rahu is at 5 degree in a sign, its effective longitude is 30 degree minus 5 degree. That is 25 degree. Uh, if this is the highest, Rahu is the Atmakarka. Uh, 2. Char Karkas, variable significators. Char Karkas are determined based on degree of planet from highest to lowest. They represent various relationships and aspects of life. List of Char Karkas. पहला आत्मकारका AK, planet with the highest degree, represents the soul and purpose. Second is Amatyakarka AMK, second highest degree, represents career, advisors, and achievements. Third is Bhratukarka, third highest degree, represents sibling. Fourth is Matrukarka, fourth highest degree, represents mother. Fifth is Pitrukarka, fifth highest degree, represents father. Sixth is Putrakarka, sixth highest degree, represents children. Seventh is Ganti Karka, seventh highest degree, represents extended family and challenges.
इसको Eighth घनाती कारक कहते हैं, ठीक है, घनाती। eighth is Dharakarka. Eighth highest degree represents spouse. If two planets have the same degrees to the second, both will share the same Karaka role and one Karaka may be missing. ठीक है, ये तब होता है जब डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों चीज सेम हो, ठीक है, तीनों चीज सेम हो, ठीक है, डिग्री भी सेम हो, मिनट भी सेम हो और सेकंड भी सेम हो, ठीक है, तब ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, जब अ, मिनट में डिग्री तो सेम हो, मिनट में फर्क हो तो नहीं होता है, सेकंड में फर्क हो तो नहीं होता है, ठीक है, तो हर प्लेनेट का डिग्री और मिनट और सेकंड जरूर ये करेगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे देखिए, इसको तो समझाया गया है, ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो आत्मा कारक, उसके नीचे अमात्य कारक, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री, थर्ड हाईएस्ट डिग्री ये अ, क्या था, आत्मा, अमात्य और ये अ, गुरु को कौन रिप्रेजेंट करता है, थर्ड कौन सा था, भारत भ्रातृ भातृ भ्रातृ का भा भात, भाई, हाँ सिबलिंग्स, भातृ। हाँ हाँ, उसको उसको भी कहते हैं गुरु कारक, ठीक है, कि डायरेक्शन देखता है, ठीक है, ठीक है, कि देखिए, अ, एक राजा होता है, उसके नीचे होते हैं मंत्री, ठीक है, मंत्री के नीचे कौन होते हैं, सलाहकार, ठीक है, जो, एडवाइजर्स। हाँ हाँ, ठीक है, जो ये भ्रातु कारक होते हैं, ठीक है, हाँ, अमात्य कौन होते हैं, जो राजा को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट उनसे डील करते हैं, ठीक है, अमात्य कौन किससे डील करेंगे, इससे, भरतृ कारक, ये सब से, ठीक है, डिग्री के ही बेस पे सीनियोरिटी होता है, ठीक है, सबसे कम डिग्री दारा कारक को होता है, दारा कारक का होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अमीर जी। Importance of Charkarkas. The Atmakarka dominates the chart and indicates the soul's mission. Other Karkas represent key relationships and aspects of life influenced by their dignity and position. Relationship with Atmakarka. If the Atmakarka is favorable, the effects of other Karkas, like the Karka for marriage, are enhanced. If unfavorable, challenges arise in the respective areas of life. देखें, एक प्रथा था बहुत पहले, ठीक है, राजा अगर मर गया, ठीक है, कोई युद्ध करते हुए, जब राजा मर जाता था, ठीक है, तो ये सारे सेना को बंदी बना लिया जाता था, ठीक है, राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चेस के गेम में, ठीक है, कुछ लोग लूडो खेलते हैं, कौन लोग लूडो खेलते हैं, आप, बहुत बढ़िया, और कोई नहीं, ठीक है, लूडो, ठीक है, और चेस, चेस किसको खेलने में मजा आता है, ठीक है, ये चेस जो होता है, ठीक है, उसमें दिमाग का ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप लूडो खेलते हैं तो आपका जो पासा है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि आपकी किस्मत, ठीक है, चेस में आप खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है,
इसीलिए बहुत लोग चेस नहीं खेलते हैं। ठीक है। हाँ, चेस के बारे में याद आया जो अभी थोड़े दिन पहले जो जीता था ना। ठीक है। गुकेश निर्मला सीतारमन। गुकेश था ना, गुकेश। हाँ हाँ जी हाँ। कितन आई थिंक 40% तो टैक्स में ही चला गया। ठीक है। सर टैक्स भी माफ कर दिया था ना। माफ करना ये सेकेंडरी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन लगा तो। हाँ, तो ये ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो राजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत। ठीक है। राजा इन शक्तिशाली होगा तो सब शक्तिशाली होंगे। ठीक है। कोई भी चीट नहीं कर पाएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि एक घर में है, ठीक है। राजा वहां का बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो कोई लोग भटकेंगे? नहीं भटकेंगे। राजा का कमजोर हुआ तो बगल वाले भी बोल के निकल जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा रियल लाइफ में होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। Fourth, constant karakas, sthir karka. While char karakas are variable based on planetary degrees, sthir karakas are fixed and represents consistent significators. List of sthir karakas. पहला, Sun, Venus. Stronger of the two represents the father. Second, Moon, Mars. Stronger of the two represents mother. Third, Mars represents sibling and younger relations. देखिए, सन और वीनस दोनों में से जो स्ट्रांग रहा, ठीक है, स्थिर कारक के में बता रहे हैं, ठीक है। चर कारक को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? श्री विष्णु, ठीक है। भगवान श्री हरि विष्णु, ठीक है। स्थिर कारक को कौन रिप्रेजेंट करते हैं? ये आ, ये भगवान शंकर, क्योंकि ये तमोस होता है, ठीक है। और जो अमात्य कारक, आत्मा कारक, ये सब जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं चर कारक होते हैं, ठीक है। एक होता है नैसर्गिक कारक, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्लेनेट उसमें, ठीक है। तो वो नैसर्गिक कारक है, ठीक है। तो वो अ, ब्रह्मा जी रिप्रेजेंट करते हैं और राशिक होते हैं, ठीक है। तो जो सन और विनस में सो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो फादर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मून और मार्स जो भी स्ट्रॉन्ग होगा मदर को रिप्रेजेंट करेगा। मार्स सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है और यंगर सिबलिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। भाई से विवाद हो गया, छोटे भाई से, गारंटी है कि मार्क्स खराब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Mercury represents maternal relatives. Jupiter represents paternal grandfather. Venus represents spouse. Saturn represents children. Ketu represents wife, in-laws, and spiritual connections. Example of sthir karakas. If Venus is exalted and Sun is weak, Venus will represent the father. If Moon is strong, it will signify the mother. Examples of Atmakarka and Karakas in practice. Example first, ascendant Taurus, Atmakarka, Moon in Leo. At 27 degrees influence, the Moon as Atmakarka indicates the person's life revolve around nurturing, emotions, and leadership in personal matters. Example 2, Rahu as Atmakarka. Rahu signifies unfulfilled desires from past life. The individual might face struggles and temptations but has immense potential for growth and transformation.
रामकृष्ण परमहंस जी का भी आई थिंक राहु ही आत्मा कारक थे। ठीक है। आत्मा कारक का मतलब है कि आत्मा का क्या पर्पस है। ठीक है। आत्मा कहाँ भटक रहा है, ऐसा। ठीक है। Key points for interpretation. Analyze the house placement of Karkas. Access the strength, dignity of Karkas, exhalation, debilitation, or friendly signs. Aspect and conjunctions with benefic or malefic planets modify the result. Consider divisional charts like Navamsha D9 to understand deeper influence of Karkas. Summary. Atmakarka represents soul's mission and dominates the chart. Charkarkas describe relationships and life aspects based on planetary degrees. Sthirkarkas are fixed indicators of universal relationships like parent, sibling, and spouse. The analysis of karkas reveal a person's life purpose, challenges, and relationships, offering a profound understanding of their journey. समझ में आया यहाँ तक? गुड। और इसके बाद का क्या हुआ है, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव MCQs, ठीक है। आत्मा कारक और अतर कारक पे, ठीक है। आप सब लोग को डिलीवर करवा चुके हैं, ठीक है। आराम से। हम बोले थे ना कि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, हर चैप्टर पे। कि क्योंकि दिमाग ज्यादा खुले, ठीक है, कि जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। क्लास में फोकस रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं रहता है, लेकिन होमवर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। Constant significators from bhavas and planets. Planets signify specific relationships or aspects which can also be derived from houses associated with those planets. Planetary signification from bhavas. Sun, father. Ninth house from sun denotes father. Moon, mother. Fourth house from moon denotes mother. Mars, siblings. Third house from Mars denotes brother and sisters. Mercury, न- maternal. जहाँ पे सन होगा, ठीक है, जहाँ पे सन होगा, ठीक है, वहां से 9th हाउस, ठीक है, ठीक है, डिनोट्स फादर। आपके पिता कैसे होंगे? सर ठीक है। राशि चार्ट से देखेंगे कि D9 से हाँ, देखेंगे? नहीं, राशि चार्ट। राशि चार्ट। ठीक है। ठीक है। और मर्दर कैसे होंगे? फिर 4th हाउस फ्रॉम डिनोट्स मून। ठीक है। ठीक है। आपके आपके लिए माता पिता, हर किसी के लिए व्यवहार अलग होता है, ठीक है। तो ये मार्स, थर्ड हाउस, मार्स से थर्ड हाउस बदर, जो भाई हैं और बहन हैं, यंगर, ठीक है, तो उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। Mercury, maternal relatives. Sixth house from Mercury denotes maternal uncles and aunts. Jupiter, children. Fifth house from Jupiter denotes progeny. Venus, spouse. Seventh house from Venus denotes wife or husband. Saturn, death, longevity. Eighth house from Saturn denotes lifespan and death. ठीक है। ये मरकरी, 6th हाउस फ्रॉम मरकरी, ठीक है, डिनोट्स मैटरनल अंकल्स, आंट्स, ठीक है, जो भी, ठीक है, वो। जुपिटर
जहां पे बैठा हुआ है वहां से फिफ्थ हाउस, ठीक है, फिफ्थ हाउस, ठीक है, तो डिसाइड करता है कि पोजीशनिंग कैसी होगी, ठीक है। वीनस सेवेंथ हाउस जहां पे भी अ, होगा, ये जहां पे भी होगा, ये क्या नाम है, वीनस, ठीक है, तो वीनस रिप्रेजेंट करेगा सेवेंथ हाउस वहां से, ठीक है, वाइफ को और हस्बैंड को भी, ठीक है, जिसका चार्ट है उसके थ्रू, ठीक है। सर हम सर इससे प्लैनेट्स नेचर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी वाइफ ऐसे राइट, नेचर की होगी, राइट, राइट। फादर ऐसे होंगे, मत जैसे हमने जो अपना एरीज टॉरस और जेमिनाई का पढ़ा था पर्सनालिटी ट्रेट, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं ना कि ये अगर फादर का साइन सन से नाइन्थ हाउस जेमिनी है तो उनका नेचर ऐसा होगा जैसे जेमिनाई लोगों का होता है। हाँ, ठीक है। और मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा तो थोड़ा सा कड़वाहट रेशन कड़वा, हाँ हाँ। होगा। ओके। हाँ जी। गीता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर मतलब प्लैनेट से सेवेंथ हाउस और ये ऐसे कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल कि समझो वीनस ट्वेल्थ हाउस में है, तो उससे सेवेंथ तो सिक्स हाउस होता है ना, फिर सिक्स हाउस से हाँ, वाइफ कैसे देखेंगे? नहीं, वीनस आपको सिंपल सी क्या है, ठीक है, पूरा नहीं देखना है, ठीक है, मछली के आंख में ही देखना है, सिंपल, ठीक है। कहाँ से क्या देखेंगे वो सब मुद्दा है ही नहीं, ठीक है। इतना मुद्दा है कि वीनस से सेवेंथ हाउस, ठीक है, डिनोस वाइफ और हस्बैंड, बस, ठीक है, चाहे सिक्स हाउस जो भी रिप्रेजेंट करे, डोंट वरी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये वीनस से सेवेंथ हाउस हो गया, तो यहाँ का नेचर हो गया, बस। मछली के आंख में देखना चाहिए, ठीक है, तभी तो तीर मार पाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद सैटर्न से एट हाउस, लॉन्जिविटी, लाइफ स्पैन और डेथ, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि मरते मरते बच गए, ठीक है। आप लोग ऐसे बोलते थे हैं, काहे नहीं मर गए ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो सैटर्न से एट हाउस, ये एट हाउस, हाँ, ठीक है। मेलेफिक प्लैनेट बैठ गए तो दिक्कत है, ठीक है, लेकिन बेनिफिक बैठे तो आभास हो जाता है कि हम मरने वाले हैं, ठीक है तो सर पूर्वा, कोई प्लैनेट नहीं हो उस हाउस में तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर डेथ नहीं होगी? किसी ना किसी का तो एस्पेक्ट पड़ रहा होगा। राइट, ठीक है, ऐसे कैसे डेथ नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पढ़िए। सौम्या, पढ़ो। If example, if the sun is in Leo, ninth house from sun, Aries in this case will give insight about the father. If Mercury is in Taurus, sixth house from Mercury, Libra, will signify maternal relatives. Second, Bhava significators and key aspects. Each house represents a distinct area of life, and specific planets serve as general significators, karakatvas for those houses. Bhava wise significator. First house, ascendant, self, soul, constitution. सर स्क्रॉल करना। सर चलो चलो, सर नहीं है क्लास में, छुट्टी मनाओ सब बच्चे, जैसे स्कूल में करते थे। सेकंड हाउस, फैमिली, फाइनेंस, स्पीच, सस्टेनेंस, सिग्निफिकेटर जुपिटर। थर्ड हाउस, सिबलिंग्स, करेज, कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेटर मार्स। फोर्थ हाउस, मदर, होम, कंफर्ट, इमोशंस, सिग्निफिकेटर मून।
फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन, इंटेलेक्ट, पास्ट लाइफ, कर्मा, सिग्निफिकेटर जुपिटर। सिक्स्थ हाउस एनिमीज, हेल्थ। एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखिए, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर का समझ में आया। ठीक है। ओके। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट हाउस अटेंडेंट, ठीक है, उसका सिग्निफिकेटर कौन है? सूर्य। मान लेते हैं, थोड़ा सा बीएनएन का अ, भी बताते थे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि सन फर्स्ट हाउस का कारक है। ठीक है। ठीक है, किसी का सन जुपिटर के साथ है, ठीक है, सेवेंथ हाउस में। ठीक है, तो सन तो सेवेंथ हाउस में, और जुपिटर भी सेवेंथ हाउस में। सन के साथ कॉम्बिनेशन कौन है? सन, ये जुपिटर। जो जुपिटर का फर्स्ट हाउस में इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड हाउस का रिप्रेजेंटेशन है जुपिटर के बाद, जुपिटर के पास। ठीक है, जुपिटर यहाँ भी लिखा हुआ है फैमिली, फाइनेंस, स्पीच और सस्टेनेंस। ठीक है, मान लेते हैं जुपिटर और सैटर्न किसी का, किसी का ये जुपिटर और सैटर्न किसी का क्लोज कंजंक्शन में होगा। ठीक है, तो सैटर्न, ठीक है, और जुपिटर, ठीक है, जुपिटर जहां पे रिप्रेजेंट करता है, वहां पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, थर्ड हाउस का मार्स है, ठीक है, कारक। ठीक है, मार्स के साथ वीनस है। मान लेते हैं कि मार्स के साथ वीनस है। ठीक है, तो वीनस का इन्फ्लुएंस थर्ड हाउस में होगा। किसी का भाई बहुत पैसा कमाया, ठीक है, ऐश मौज कौन किया? भाई, छोटा भाई। क्योंकि थर्ड हाउस में वीनस बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसा। फोर्थ हाउस का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? मून। मून के साथ मार्स बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में मार्स का इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसी को कहते हैं बीएन। ठीक है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, कि ये इसको फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आए? गुड। फिफ्थ हाउस सैटर्न, और जुपिटर किसके साथ बैठा हुआ है? ये गीता जी और ईरा जी, आप बताइए, जुपिटर किसके साथ बैठा हुआ है? तो मेरा मेरा जुपिटर मार्स के साथ है 10th हाउस में। गुड। मेरा तो और सैटर्न है। सैटर्न मेरा सैटर्न और जुपिटर साथ में बैठा है थर्ड हाउस में। और कहीं, वीनस भी है सर। कहीं भी बैठा हुआ हो, ठीक है। हाँ, तो उसका हाँ, इन्फ्लुएंस मगर दोनों का एक दूसरे के कारक तत्व में इफेक्ट करेगा। करेगा। ठीक सेकेंड है, हाउस में एंड जुपिटर का फिफ्थ हाउस कारक है, सेकेंड हाउस कारक है, तो उसमें सैटर्न का भी इफेक्ट रहेगा। राइट। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जुपिटर के साथ और ये मून और वीनस, नहीं, वीनस और मार्स, क्या, सैटर्न। ठीक है, हाँ, तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न और ये वीनस का इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। ठीक है, और ये आप बताए थे कि मार्स के साथ और जुपिटर का है। ठीक है ना। ठीक है, तो हाँ फिफ्थ सर। हाउस के केस में, ठीक है, फिफ्थ हाउस के केस में जुपिटर होगा ना। ठीक है, तो उसके साथ कौन बैठा हुआ है? मार्स।
मार्स। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में मार्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो मतलब नहीं आया? किस टाइप का इन्फ्लुएंस, मतलब कैसे इन्फ्लुएंस करेगा मार्स? कैसे करेगा तो हमको नहीं पता, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उस पत्ते खोलेंगे ना। ठीक है। हीरा सबर करो। हाँ, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। हाँ, गुड। ठीक है, क्योंकि जो मान लेते हैं कि फिफ्थ हाउस का जोडिएक साइन कैंसर है। ठीक है, मार्स डेवलेटेड हो गया। ठीक हाँ। है। ठीक है, तो अच्छा फील नहीं होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी में फर्स्ट चाइल्ड में दिक्कत होगा। ठीक है, ऐसा। जोडिक साइन कौन सा है? पहला पुत्र कैसा जन्म हुआ है? मान लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा तो तकलीफ होगा क्योंकि वाटरी साइन नहीं है। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा तो तकलीफ होगा, लेकिन सूरवीर जन्म होगा। एक प्रथा था। ठीक है। हाँ, आई थिंक ज्यूस में वो पढ़ता है। ठीक है, कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको जन्म के तुरंत बाद छत पे छोड़ देते हैं 24 घंटा के लिए। आई थिंक एक रात के लिए या 24 घंटा के लिए। जो बच गया उसको मानते हैं कि ये सूरवीर होगा। ठीक है, और नहीं बचा, कोई बात नहीं, नहीं बचा तो नहीं बचा। ठीक है। ठीक है, लेकिन छपरी टाइप का बच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि टॉक टिकटॉक पे नाचते फिरते हैं लोग। ठीक है, ऐसा छपरी टाइप नहीं। ठीक है। आ, आगे आगे बढ़ते हैं। ये मार्स